اب سوشل میڈیا پہ ایسے ہم نے دیکھا بہت ساری کوریج ملی چونکہ اس عورت مارچ کو, شاید مجھے بھی اس کے بعد کافی تنقید کی جائے, شاید ہم سب تمام لوگوں, کیونکہ ہم بڑے بولڈ ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو جی میں نے دیکھی ایک خاتون جو کہ کافی انگریز نما خاتون تھی, اور ایک رپورٹر آتا ہے, وہ آ کے ان سے پوچھتا ہے کہ جی کیا آپ کے میڈم مطالبات ہیں عورت مارچ میں, آپ کے کیا رائٹس ہونے چاہیے یا کیا شکایات ہیں آپ کو. تو وہ خاتون بالکل انگلش خاتون بن گئی, سوری آئی ڈونٹ گیٹ یو, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یو, وٹ آر یو سے. اب میں دیکھ رہی ہوں کہ اب اس کو اگر اردو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اس کا ایکسنٹ ایک دم سے اتنا امریکن انگلش ہو گیا, تو یہ یہاں پہ کس عورت کے حقوق لینے آئی ہے, یہ کن رائٹس کی بات کر رہی ہے جس کو اپنی زبان ہی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. یعنی کہ آپ کو اگر اپنی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی, دیٹ مینس کہ آپ کو اپنے کلچر کا نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا کہ گاؤں کی عورت کیا سفر کر رہی ہے, تو آپ اس کی ریپرزینٹیو کس طریقے سے بنیں گی, یہ مسئلہ ہے, یہ مدعا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح گاؤں کی جو خواتین ہیں وہ زیادہ پاورفل ہیں شہر کی خواتین سے, وہ مقصد فصلوں میں بھی کام کرتی ہیں, بھٹوں پہ بھی کام کرتی ہیں, اپنے ڈور ڈنگر بھی ڈھوتی ہیں, بچے بھی سنبھالتی ہیں, پانی بھی دور سے لاتی ہیں, اور پھر بھی وہ ایک زندگی گزارتی ہیں اور دکھاتی ہیں. ستیار, آپ کیا کہیں گے اس پورے مارچ کے حوالے سے؟ پہلا میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ پنجرے جو کہ پرندہ ہے, اگر اس کو آپ پنجرے میں قید رکھتے ہیں تمام سہولیات کے ساتھ, اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل آزاد نہیں ہے, اس کو اپنی زندگی کے ساتھ جو ہے نا اس کی وابستگی ہو جائے گی. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر عورت کا جو ایک کلاس ڈفرنس ہے, کہ عورت ایلیٹ کلاس کی عورت جو ہے اس کے اپنے مسائل ہیں, جو ورکنگ وومن ہے اس کے اپنے مسائل ہیں, جو ورکنگ کلاس کی وومن ہے جو فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں. اب ان کی ٹھیک جگہ پر ریپرزنٹیشن بھی ضروری ہے. ہم عورت مارچ کو یہ تو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اچھا کس نے بات کی, کیا بات کی, ہم یہ دیکھیں کہ اچھا ان کے جو مطالبات ہیں وہ کیا ہیں. اب صرف ہم یہ کہہ دیں کہ اچھا ایک عورت کو کام کرنے کی آزادی ہے تو دیٹس انف, ایسا نہیں ہے. وہ کام جب کرنے جاتی ہے اس کو جن آنکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے آگے کوسچن مارک ہے, اس کو جو سیکشل ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے آگے کوسچن مارک ہے. پھر جو اپنی ذاتی زندگی کو بنانے کے لیے فیصلے ہیں, وہ شادی کے ہیں, وہ کیریئر کے ہیں, وہ پڑھنے کے ہیں, اس پہ فیملی پریشر بھی ہوتا ہے, ہماری رسم و روایات اور رواج کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے. ان سب چیزوں کو کوپ اپ کرنے کے لیے وہ ساری عورت مارچ کو منعقد کیا گیا تھا, آرگنائز کیا گیا تھا. اب ہمارے یہاں پر چونکہ ڈبیٹ ایسی ہے کہ ہمارے یہاں پہ کلچری ہسٹوریکلی چیزیں ایسی رہی کہ ہمیں یہ لگتا ہے, ہمیں یہ تھوڑا سا کہنا کہ انڈائریکٹلی سکھایا جاتا ہے کہ شاید عورت جو ہے وہ مرد سے نیچے ہے. یہ ہماری سوسائٹی سکھاتی ہے, یہ سکھایا جاتا ہے بالکل چھوٹے ہوتے ہی سکھایا جاتا ہے. جب اور یہ بھی ماں ہی سکھاتی ہے گھر میں, جب وہ بیٹی کو کم کھانا دیتی ہے اور بیٹے کو اچھی بوٹی دیتی ہے اور بہن کو بولتی ہے جاؤ بھائی کے کپڑے استری کرو, جاؤ اس کا سامان تیار کرو, تو یہ وہیں سے ہم نے بتا دیا کہ وہ سپیریئر ہے اور تم یہاں پہ سپیریئر نہیں ہو. اور جب لڑکے کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے, اس کی سیٹ ریزرو ہے, لیکن وہیں پہ خاتون کو بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. ان پر تو نہیں ہم آ رہے ہیں. اس میں تھوڑے تھوڑے دیکھیں یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ سوسائٹی کو شیپ کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر ایک جگہ پہ اگر ماں کا یا باپ کا یہ رویہ کہ اچھا میں اپنے بیٹے کی لو میرج قبول کر سکتا ہوں لیکن بیٹی کی نہیں کر سکتا ہوں, تو یہ جو تضاد ہے یہ کیا ظاہر کرتا ہے. پھر آپ چھوٹی سی جو کھلونے ہوتے ہیں, آپ لڑکیوں کے لیے اگر لے کے آ رہے ہیں, برتن لے کے آ رہے ہیں, اس کو آپ بتا رہے ہیں کہ اچھا تمہارا مستقبل جو ہے ان کھلونوں میں, ان برتنوں میں پرنسس بننا ہے تم نے, ہاں کچن میں کھیلنا ہے, کچن سیٹ ہے اس کے لیے, کچن سیٹ اپ ہے. لڑکوں کو جہاز لا کے دیں گے کچھ کہ اچھا میرا بیٹا پائلٹ بنے گا, میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا, کارز ہوتی ہیں ان کے لیے. ایگزیکٹلی. تو یہ جو ڈفرنسز ہیں, یہ جو تضاد ہے, ہمیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دیکھیں مرد ہے عورت ہے, یہ بات کی سب سے پہلے ہم انسان ہیں, ہمیں اس چیز کی قدر کرنی چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. پھر جو ڈیپریویشن ہے, ایموشنل جو ڈیپریویشن ہے, ڈیفیسٹ ہے, وہ مرد کا بھی اتنا ہے اور عورت کا بھی اتنا ہے. ہم اس کو بالکل لیبلائز نہیں کر سکتے ہیں کہ اچھا عورت ہے تو عورت ہی جو ہے نا وہ بالکل غم میں رہتی ہے, یا مرد جو ہے بالکل ہارڈ کور ہوتا ہے. ہمیں دونوں چیزوں کو سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آگے چلنا ہے, اور اس میں فیملی کا, ماؤں کا, بہنوں کا, آپ کی دوستوں کا, سہیلیوں کا, ہر بندے کا جو ہے نا فرد کا کردار بڑا ضروری ہے. اچھا ایک سلوگن آیا, I agree with سبتے حسن, I'm sorry, I agree with him. اور میں ساتھ صرف یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں, اس چیز کو انڈورس کرنا چاہتی ہوں کہ جو بیلنس کی بات ہے نا, وہی رول میڈیا کا بھی ہے. کہ اگر میڈیا میں ایک رپورٹر نے آپ کو ایک نیگیٹو چیز دکھا دی ہے تو کتنی ساری اچھی چیزیں اگنور کی ہیں, اور وہ کتنی زیادتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اس کاز کے لیے نکلے تھے, اور جن کو میں پرسنلی جانتی ہوں, وہ جن کے اچھے مقاصد بھی ہیں اور انہوں نے حقوق کے بارے میں, ایگزیکٹ حق کے بارے میں بات کی ہے, بٹ ان کو وہ ہائپ نہیں ملی. آپ نے کیا اچھالا, نیگیٹیوٹی. اور جب پہلا مارچ ہوا, جب بہت شروع میں 2 سال پہلے, تو وہ ہوا اپنا کھانا خود گرم کر لو, اس نے کافی زیادہ پروگرامز میں اور ہائپ بنی. پھر اس کے بعد ہوا اپنا موزہ خود ڈھونڈ لو, اس بار بھی ہم نے دیکھا. اب جو اس بار ایک سلوگن جس کی ہر کوئی بات کرتا ہے اور سارے محرکات کو, مطالبات کو بھول چکے ہیں, جو کہ اصل ایجنڈا ہے وومن امپاورمنٹ کا, وہ پیچھے رہ گیا. اور ایک سلوگن جس نے ہائی جیک کر لیا پورے وومن مارچ کو, خواتین عورت مارچ کو, وہ تھا میرا جسم میری مرضی. میں کہتی ہوں میرا جسم میری مرضی.
मेरी मर्जी जो मैं अपने जिस्म के साथ करना चाहूँ, मेरी मर्जी जो मैं इस पे पहनना चाहूँ, मेरी मर्जी में किसको अलाउ करती हूँ टू टच मी, मेरी मर्जी में इसको जहाँ लेके जाना चाहूँ। तो ये वो इश्यूज है। अगर मैं जैसे इन्होंने बात की गांव में, तो इसमें ये देखे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इफ आई वोंट अलाउ यू। आपको लगता है ये ठीक है, स्लोगन ठीक है, मैं हमने नहीं, इसको गलत तरीके से अल्फाज गलत इस्तेमाल किए गए हैं। बेहतर हो सकता था, बेहतर हो सकता था। हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं है जो एकदम से अच्छा अब चीजों को ये accept कर स्लोगन ले। जब मेरी बेटी देखेगी अगर, या आपकी कोई छोटी बहन देखेगी जो कि कम उम्र है, जो कि 12, 13, 14 साल की है, जो कि बालिग हो रही है, वो कैसे लेगी स्लोगन को? क्या वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं चली जाएगी, या फिर हम उसको छोड़ दें? अच्छा मैं इसमें मैं कुछ add करना कंफ्यूज चाहती हूँ थोड़ी सी, इसलिए मैंने कहा कि मैं आप लोगों की राय लूँ। आप लोग यंगस्टर्स हैं और सपोर्ट करते हैं इन तमाम चीज़ों को, तो क्यों ना आप लोगों की राय ली जाए। जी नम्रा। मैं ये कहना चाहूँगी कि अब अगर हम स्लोगन्स के बैकग्राउंड में जाए ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम खुद अवेयर नहीं थे और हमने उनको सर्च किया तो पता लगा। जैसे आपने खाना खुद गर्म कर लो की बात की, तो दैट वाज वेयर अ हस्बैंड किल्ड हिज वाइफ जस्ट बिकॉज उसने उसको खाना ठंडा सर्व किया। एक मिसाल पे क्या आप एक पूरा मार्च लेके चल सकते हैं? माय पॉइंट कि एक स्लोगन के पीछे क्या पूरी औरत मार्च को जलील करना सही है? नहीं। इसमें एक और बात है, मेरा ख्याल है कि जो That is the इंटरप्रिटेशन है वो बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट बात लगती है। अगर आप ये कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अब हमारी सोसाइटी ये है, ऐसी है कि हम जिस्म से बाहर नहीं जाते हैं। अब मेरा जिस्म मेरी मर्जी से मुराद ये है कि मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, उसमें ज़ाती इजहार की मर्जी, उसमें ज़िंदगी के फैसले लेने की मर्जी। अब हम चूंकि हमारी सोसाइटी वो जिस्म से और उस चीज़ों से बाहर ही नहीं निकलती है, फिर सोशल मीडिया पे जो मीम्स के थ्रू, ट्रोलिंग के थ्रू एक माइंडसेट बनाया जा रहा है। और हमें ये भी मानना पड़ेगा कि अच्छा सोशल मीडिया पे जो एक फेक न्यूज़ आती है, जो प्रोपोगंडा कॉन्शियसली किया जाता है, वो भी चीज़ों को देखने के लिए हमें ये नारा सिर्फ दिखाई दे रहा है कि अच्छा मेरा जिससे मेरी मर्जी, जिसकी इंटरप्रिटेशन गलत कर दी गई है, उसके साथ ये नारा क्यों नहीं दिखाया जा रहा है कि अच्छा औरतें अपना सियासी हकूक के लिए भी बात कर रही हैं। वो कह रही है कि अच्छा हमें पोलिटिकल पार्टीज में टिकट दी जाए, हम असम्बली में जाएं, और असम्बली में जब हम चली जाती हैं जो खवातीन की नशिस्तें हैं, वहाँ पे वुमन को एम्पावर करके उनको फैसला साजी में भी लिया जाए। आप सिर्फ उनको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देके खत्म ना कर दें। ये पूरी इंटरप्रिटेशन ये है। अब उसको प्रोपेगेंडा करके उसको जो है ना जाहिर करने की कोशिश की जा रही है। मेरा ख्याल है कि औरत समाज कामयाब रहा है। अगर एक तरफ हमें प्रोग्रेसिव औरतें बाहर निकलती नजर आ रही हैं, एक एजेंडा था कि अच्छा दूसरी औरत जो घर में अपनी चार दीवारी के प्रेशर में रहती है वो भी बाहर निकली है। वो अगर हया डे पे निकल आई है, जिनको कभी भी उनके मर्द अलाउ ना करते कि आप प्रोटेस्ट पे चली जाएं, उनको उन्होंने अपने सेफ हैंड के लिए, अपनी हेजमनी के लिए उन्होंने औरतों को भी निकाला। तो मेरा ख्याल है कि चाहे लेफ्ट की बात है या राइट की बात है, औरत का निकलना मकसद था, औरत बाहर निकली है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आज पाकिस्तान की यूथ यंग टैलेंट को हमने इनवाइट किया है हमारे शो में, ताकि जो करंट इशू चल रहा है औरत मार्च के हवाले से, उसके ऊपर इनकी राय हम लोग जान सके। एक टर्म बहुत ही यूज की जाती है ट्विटर के ऊपर, #फेमिनिज्म। मैं जानना चाहूंगी कि ये लोग इस टर्म को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो कौन पहले बताना चाहेगा? फाहद। मेरे हिसाब से जो फेमिनिज्म है बहुत छोटी सी चीज़ है। एक तो इसको बहुत ज़्यादा, एक तो खास तौर पे ये औरतों के साथ रेलिवेंट नहीं है, ये इंसानों की बराबरी की बात है। इसमें ये ज़रूरी नहीं कि मैं अगर फेमिनिस्ट हूँ या मैं ये कहूँ कि फेमिनिज्म के ऊपर बात कर रहा हूँ या मेरा मौजूद गुफ्तगू फेमिनिज्म है तो मैं औरतों के हकूक़ की बात करूँगा, मैं ट्रांसजेंडर्स की भी बात करूँगा, मैं मर्दों की भी बात करूँगा, मैं ख़वातीन की भी बात करूँगा, मैं बच्चों की भी बात करूँगा। तो इस माइंडसेट से निकल के हमें ये सोचना चाहिए कि फेमिनिज्म औरतों के साथ, एफ होने की वजह से फीमेल्स के साथ ही वो अटैच। फेमिनिज्म में आप अगर बराबरी की बात करते हो ना, तो इट शुड बी फॉर एवरीवन। वहाँ पे मर्द की बराबरी भी आती है, औरत की बराबरी भी आती है। मैं सिर्फ एक बात एलेबोरेट करना चाहूँगी भी, फहद ने एक बात की थी कि मर्दों को हम लोग सप्रेस करते हैं। अब देखिए कुदरती तौर पे ऐसा नहीं है। कुदरती तौर पे मर्द और औरत में सिर्फ एक फ़र्क है, मैं अपने जिस्म में बच्चा रख सकती हूँ, मर्द नहीं रख सकता। दैट इज द ओनली डिफरेंस जो खुदा ने क्रिएट किया, कुदरती तौर पे ये बना है। उसके अलावा क्या डिफरेंस है कि फेमिनिज्म की डिफरेंट टाइप्स हैं। उसमें लिबरल फेमिनिज्म भी है, कल्चरल फेमिनिज्म भी है, रेडिकल फेमिनिज्म। ये क्या है? अब जो जहाँ पे जो लोगों को एतराज है, मसला किस वाले में है? मसला रेडिकल से है लोगों को। क्योंकि रेडिकल की जो बेसिक वो है ना आइडियोलॉजी, वो ये है कि आप जेंडर की डिफरेंशिएशन खत्म कर दें। ठीक है, मतलब मर्द औरत जो है वो बराबर हैं, और बराबर इन द सेंस कि मर्दों की, वो जिसको बोलते हैं ना पिदरशाही का जो लफ्ज यूज हो रहा है आजकल बहुत ज्यादा, कि पेट्रियार्की नहीं रहनी चाहिए, ये वो मतलब अगर इफ मैन इज द हेड ऑफ द हाउस होल्ड तो वो नहीं होना चाहिए, इस तरह की बातें। लेकिन आप बाकी ऐसा हो सकता है? नहीं, देखें ऐसा हो सकता है डिफरेंट फैमिलीज में डिफरेंट सिचुएशंस चल रही हैं।
अगर किसी खातून ने अपनी फैमिली में अच्छे मर्द नहीं देखे और वो इस पे आवाज उठाती है तो इसका ये मतलब नहीं कि सारे मर्द बुरे हैं। और इसी तरह से अगर कोई अच्छे फैमिली में अच्छे मर्द हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मैं बाकी मुझे औरतों समझ को में नहीं वो आता गलत ये कहें। लड़ाई किस बात की है। सब कुछ प्यार मोहब्बत से जब हो सकता है तो इसमें पावर मैं ले लूं, मैं घर की सरपरस्त बन जाऊं, हेड बन जाऊं, मर्द कहे कि नहीं तुम सिर्फ खाना बनाओगी, दोनों को एक दूसरे को साथ Exactly. लेके चलना है। Peaceful अब dialogue इतना की जरूरत फर्क है। है कि यार अपना खाना खुद गर्म करो, यार आज तबीयत नहीं ठीक है, यार अपना खाना और खुद गर्म it's कर really लो। hard for क्या women, बात I हो guess. जाती है इसके अंदर अगर मर्द भी अपना देखिए, खाना उसके अगर बाद खुद गर्म उस कर पे वो भी लेंगे आया था तो कि इसमें आओ कोई मिलकर कबाहत खाना नहीं बनाएं। है। बिल्कुल उसके बाद आओ मिलकर हर खाना चीज बनाएं भी प्यार आया था। मोहब्बत से हल हो सकती है अगर आप सकती है। अगले लेकिन बंदे बेचारी को कुछ सुनने कहना की चाह रही है। ताकत तो इसमें ना औरत कमतर है ना इसमें मर्द, लेकिन जो मुझे ऐसा लग रहा था, पता नहीं अब सब लोग मुझे लगता है मेरे फ्रेंड्स मेरे खिलाफ हो जाएंगे कि मर्दों के खिलाफ एक जंग छिड़ गई है, एक महाज छिड़ गया है, उनके बारे में थोड़ी सी नफरत की लहर मुझे ऐसा देख के लगा कि ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे जो कि मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको बहुत पसंद करते हैं। और मैं आज सुबह ही देख रही थी मेरे इंस्टाग्राम पे बड़ी शेरो शायरी वाली एक बड़ी फेस सामने रखी, फेशियल एक्सप्रेशन देकर एक शेरो शायरी मर्दों के खिलाफ की जा रही है। अब जितने लोग उनको फॉलो करे होंगे वो कह रहे होंगे भाई वाह। लेकिन मैं कह रही थी कि अरे नहीं, ये बहुत ही गलत इम्पैक्ट जाएगा, एक बड़ा गलत मैसेज जाएगा। तो ऐसा नहीं है, मेरा बाप बहुत ही काइंड फादर है, मेरा हस्बैंड एक बहुत ही लविंग शौहर है, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि मर्द बुरा है हमारी सोसाइटी का? हम तो ऐसे मर्दों में Generalize रेज नहीं हुए कर हैं। सकते। सवाल मेरा भी यही था कि मसला हकूक का है या मर्द से। ये मैंने काफी दोस्तों से अपने पूछा है कि ये मुझे अब क्लियर कीजिए कि मसला मर्द से है। अवाम खुद कंफ्यूज है, हाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज की है। बात नहीं है। देखिए, मसला पहली बात ये समझने की जरूरत है कि फेमिनिज्म जो है किसी खास औरत की बात नहीं है, वो एक आम औरत की बात है। अब मेरा मर्द बरादरी से ताल्लुक है कि अच्छा मेरी भी बहनें हैं, चले शादी तो नहीं है लेकिन बेटियां सो जो है ना बाहर औरतें काम करती हैं जाती हैं। अगर हम मर्द इतने ही अच्छे हैं तो हम अपनी बहन या बेटी को घर से निकलने से पहले क्यों कहते हैं कि किसी मर्द से बात नहीं करनी? मर्द ऐसे होते हैं, मर्द ऐसे होते हैं, मर्द ऐसे होते हैं। क्योंकि हम उनकी तरबियत नहीं करते हैं और उसके बाद हम खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। हम Exactly. अपने बच्चों पे टाइम स्पेंड नहीं करते, हम उनको सही से एजुकेट नहीं करते, हम उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। बच्चे हमसे डिटैच हो problem जाते हैं। तो आ इसके गया बाद वहाँ हमें खौफ आ जाता है कि ये अब कहीं पे गुमराह हो जाएंगे, शायद तो कर रहे हैं। और एक मसला ये भी है ना कि जिनके पास कोई वसाइल नहीं है, जिनके पास कोई जराए नहीं है, हम उनको उनकी हालत का कसूरवार नहीं कह सकते। अब हमें इस चीज को इस तरह भी देखने की जरूरत है कि अच्छा जो ज़ैनब बात कर रही है कि एलीट क्लास है, वर्किंग क्लास है, हमारी जो सोसाइटी में सेग्रीगेशन है हमने डिवाइड किया हुआ है। अब एक एलीट क्लास की औरत के अलग मसाइल है, एक वर्किंग क्लास की औरत के एक अलग मसाइल है, एक अच्छा, मिडिल क्लास हमने की क्या औरत के किया, अलग मसाइल सबके है। मसाइल को हमने अपने ऊपर एक्चुअली ले लिया। यानी कि मेरा अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर मैंने कोई चीज सफर की है या मैंने कुछ अगर भुगता है और मैं वो स्लोगन लेके या मैं वो बात कह के बाहर आ गई हूँ और पीछे मेरी एक हिस्ट्री है, लेकिन मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ इन 3 खवातीन को भी जिनका वो इशू ही नहीं है, जिनका वो मुद्दा ही नहीं है, लेकिन पूरी कौम ने वो मुद्दा बना लिया और उसके ऊपर एक इंतशार की कैफियत पैदा हो गई। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और देखिए हमारी सोसाइटी में इस वक्त कौन सा ऐसा तबका है, कौन सा ऐसा सोसाइटी का एलिमेंट है जो बिल्कुल इम्पावर है? आपको स्टूडेंट यहाँ पे अपने सियासी हक के लिए बात करता फिरता है, यहाँ पे औरत अपने सियासी हक के लिए बात करती फिर रही है, यहाँ पे जो गरीब तबका है वो अपने सियासी हक के लिए बात बच्चों करता तक फिर ही रहा तो है। आप देखें ना, चाइल्ड बच्चों में लेबर कितना ज्यादा हो रहा है। अब ये मैटर्स जो है, ये सवालात जो है, ये स्टेट को भी देखने चाहिए कि अच्छा इस सारे इश्यूज में आपकी स्टेट क्या कैरेक्टर प्ले कर रही है, आपको जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, आपका एजुकेशन है, आपका मीडिया है, वो क्या किरदार प्ले कर रहा है। अब मेरा ख्याल है कि ये एक बहस का जो आगाज होता है वो नीचे से होता है, उसको कोप अप ऊपर वाले करते हैं। अब ऊपर वाले जो है वो इस शायद मजे में है कि अच्छा ये सोसाइटी जो है अपने सवालात में घुसी हुई है, इनको रहने देते हैं वहां पे, हम अपनी गेम ऑन करते हैं। हल कहाँ से निकलेगा, बेहतर कैसे हो सकता था, या अगले साल क्या बेहतरी हो सकती है? कोई सजेशन है किसी के पास? औरत मार्च के हवाले से देखिए सबसे पहली सेशन तो ये है कि मेरा ख्याल है कि वहाँ पर लीड क्लास से ज्यादा जो वर्किंग क्लास की और मिडिल क्लास की खवातीन है, जो घरों में काम करती हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करती हैं, उनके जो मुआशी मसाइल हैं, जो सियासी मसाइल है, वो वहाँ पर वो निकली हैं, डिस्कस होने वो चाहिए। निकली हैं, वो आई कैसे वो मार्च में गए? लेबर आई राइट्स थी, भी काफी आई आई थी, थी। आई थी, बहुत लेकिन कम थी। भट्टा ओवरकम कर मजदूरी जाता है। देखिए एक जो मजदूर वहाँ अपनी पे मजदूरी एक छोड़ और के नहीं देखिए- आता है जिसने 500-600 की दिहाड़ी करनी है, जिसके घर में रात को बच्चे बिलक रहे होंगे, बिलक के रो रहे होंगे खाने की वजह से। आपको नहीं वो लगता किस कि तरह अगर जो शख्स जो जिसकी जो आप बीती होगी, अगर वो आके अपना मसला मीडिया पर आकर बोलेगा या उस मार्च का हिस्सा होगा, तो उसके मुंह से वो बात निकलती हुई वो मसला सुनता हुआ ज्यादा असर रखेगा, बजाय कि उसके आगे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। लेकिन अगर एक शख्स इसका
एक मिसाल के तौर पर अगर स्लोगन था कि अपना खाना खुद गर्म कर लो, अब उसके पीछे पता नहीं क्या हिस्ट्री रह चुकी है, कितना वो तशद्दुद से गुजर चुकी है या कितने मसाइल हो चुके हैं, उस बेचारी ने कितनी मार खाई है, अगर वो आके इस चीज को एक्सप्लेन करेगी तो ये मुद्दा ना बनता। मिस बात लेकिन ये है वो कि औरत वो बाहर नहीं निकल निकली। सकती, वो औरत बाहर वो नहीं निकल सकती नहीं है। इंटरेस्ट ऑफ Problem मीडिया ये भी तो है ना, अगर एक औरत बोल नहीं सकती, वो बात को बताने के लिए मार्च में आ रही है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो इतनी या कोई भी इंसान इतना झिलमिल करता होगा कि मीडिया उस तक फौरन जाएगा। ऑब्वियसली वो एक खामोश सा एक इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान होगा, तो इसके लिए पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत जरूरी है। सजेशन कभी-कभी क्या ऐसा है, होता इसके है लिए कि- बेहतरी कैसे हो सकती है कि चीजें कंट्रोवर्शियल मुझे ना लगता है हो? कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, उनको उनकी सारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि देखें हर खातून नहीं निकल सकती। हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव क्यों बनाते हैं? वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इवेंचुअली कर रहा होता है। मतलब आप ये नहीं, अब फिर आप यही कहते हो कि ये इनके जीआर या इनकी सीआर ऐसी है तो पता नहीं क्लास कैसी होगी, बातें इस तरह की होती है। लेकिन देखें हर इंसान इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है, और स्पेशली वो खवातीन जो औरत मार्च को लीड कर रही हैं। इस दफा जो इतने अच्छे पोस्टर्स उनका अपना कोई मसला नहीं होना चाहिए, सबसे पहले तो बात ये। हाँ, पर्सनल ग्रजेस नहीं बाहर निकलने चाहिए। नहीं, पर्सनल ग्रज भी अगर आपने निकालना है ना तो आप डायलॉग से निकालें। मतलब मुझे पता है कि मैंने कहाँ कहाँ सफर किया, मैंने जॉब में सफर किया है, मैंने सफर में सफर किया है, यहाँ तक कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था, इस हद तक सफर किया है मैंने। अपने घर में देखा है, मैंने अपने इर्द गिर्द देखा है। तो बट इसका मतलब ये नहीं मैं सब मर्दों से नफरत करती हूँ। मैं सिर्फ वन लाइनर लूंगी सजेशन के लिए, मैसेज देंगे ज़ैनब निमराब। अच्छा, बहुत shortly। अभी जो आपने बोला मैं इसी की बात करूंगी कि हम बेहतर कैसे कर सके। देखिए पिछली बार से बहुत बेहतर थी, नो डाउट। अब आपने सिर्फ ये है कि आपको अपना असल मकसद पता होना चाहिए, उससे और नहीं हटना चाहिए। नहीं हटना चाहिए, और प्यार से, प्यार है, के तरीके निम्रा। से आप मैं ये उसे हल कहूंगी करें। कि आप नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए नेगेटिविटी से नहीं कर सकते। आपको इस्लाह करने के लिए पॉजिटिव और पीसफुल तरीके से आना पड़ेगा। हमारे माशरे के मर्दों को ये चाहिए कि पहले तो वो अपने इर्द गिर्द की जो खवातीन है उनसे पूछे क्या मसाइल है, जब वो उन्हें जान ले, उन्हें सोल्यूशन उनको support भी करने बाहर उनको निकलें। सपोर्ट ठीक करें, है। और बाहर निकलने से पहले कोशिश करें कि एक साल में माशरा ऐसा हो जाए कि अगले साल औरत को आना ही ना क्या बात है, जबरदस्त। इजहार की आज़ादी और सियासत की आज़ादी हर बंदे को, हर औरत को, हर मर्द को मिलनी चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। इन तमाम लोगों से मुलाकात करके बहुत ही अच्छा लगा। सबने अपनी अपनी राह से हम लोगों को इजहार किया, तो बड़ी जबरदस्त बात है। सब लोगों की अपनी अपनी बड़ी स्ट्रांग ओपिनियन है और सब लोग अपने वर्डिक्ट पर कायम है, और आप जैसे लोगों को भी मेरे ख्याल से पार्ट बनना चाहिए, ताकि जब आप लोग जाएंगे रिप्रेजेंट करेंगे तो मेरे ख्याल से कि बड़ी एक अच्छी और एक पॉजिटिव इमेज भी इसकी जाएगी। जो असल एजेंडा है उससे लोग भी नहीं हट पाएंगे और हाईजैक भी नहीं किया जाए।